We'll turn our Bibles, book of Judges and chapter 13. आइए न्यायों की किताब और उसके 13 अध्याय की ओर हम मुड़ते हैं। We're going to read three passages before we go into prayer this morning. और प्रार्थना में भाग लेने से पहले इस शास्त्र भाग को हम पढ़ते हैं। Two passages from the Old Testament and one passage from the New Testament. दो शास्त्र भाग जो है पुराने नियम से और एक शास्त्र भाग है नए नियम से हम पढ़ते हैं। First passage from book of Judges chapter 13. और पहला जो शास्त्र भाग है न्यायों की किताब उसके 13 अध्याय से। And up to verse 12 we shall read. Pardon me. 8 to 12 verses we shall read responsibly. 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ते हैं। Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God which thou didst send come again unto us and teach us what we shall do unto the child that shall be born. Read verse 9. मनोआ की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान पर बैठी थी और उसका पति मनोहा उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। And the woman made haste and ran and shewed her husband and said unto him, Behold, the man that appeared unto me, that came unto me the other day. यह सुनते ही मनोहा उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। And Manoah said, Now let thy words come to pass. How shall we order the child, and how shall we do unto him? The second passage, 1 Samuel chapter 12. दूसरा शास्त्र भाग जो है पहला शमूएल और उसका 12 अध्याय। From verse 16 to 25 we shall read responsibly. 16 से लेकर 25 तक बारी बारी से पढ़ते हैं। 1 Samuel chapter 12, 16 to 25. पहला शमूएल उसका 12 अध्याय 16 वचन से लेकर 25 वचन तक। Now therefore stand and see this great thing that the Lord will do before your eyes. आज क्यों गेहूं की कटनी नहीं हो रही है? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेंह बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगो कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। So Samuel called unto the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम न मर जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। And Samuel said unto the people, Fear not, ye have done all this wickedness. Ye turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचाएंगे और न कुछ छुटकारे हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थी है। But the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छे और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, but consider how great things he has done for you. परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे।
John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 12, और उसका 12 अध्याय from verse 23 to 28. 23 से लेकर 28 वचन तक। John 12, 28 to 38. यूहन्ना 12 अध्याय 23 से लेकर 28 तक। This also we shall read responsibly. और ये शास्त्र भाग भी बारी बारी से पढ़ते हैं। And Jesus answered them, saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर न जाए नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto his life eternal. 26. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Now is my soul troubled. What shall I say, Father? Save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। हो गया 26. यस 28। Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. May our loving and living God bless the reading of these passages for our meditation this morning before we go into time of prayer. हमारा जीवता और प्रेमी परमेश्वर हमसे बातें करे और इस प्रार्थना के समय को हमारे लिए आशीषित करे। Then we look to the Lord in prayer. आइए प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and praise you for keeping us in the land of the living. प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जीवितों की भूमि पर आपने हमें जीवित रखा है। The purpose of keeping us alive may fully be accomplished in our lives and in your ministry and the kingdom. प्रभु जी, जीवित रखने का जो उद्देश्य है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस जो उद्देश्य प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए हो, हमारी प्रार्थना है। हमारे में भी, even in our lives also. हमारे जीवन में भी उसको पूरा करें। Now bless the reading of these three passages for our meditation. अब प्रभु जो 3 शास्त्र भाग हमने पढ़े हैं, हमारे मनन के लिए इस शास्त्र भाग को आशीषित करें। We acknowledge we are unworthy and unprofitable servants. No good thing dwelleth in us. प्रभु जी, इस बात को हम कबूल करते हैं, हम बिल्कुल अयोग्य और निकम्मे दास प्रभु जी है, इस बात को हम कबूल करते हैं। We are weak and foolish and frail. प्रभु जी, हम दुर्बल है, मूर्ख है, और प्रभु जी हम बिल्कुल क्षणिक है। In our weakness, you are our strength. प्रभु जी, हमारे दुर्बलता में आप हमारे बल हो। In our foolishness, you are our wisdom. हमारी मूर्खता में आप हमारी ज्ञान हो। So we entirely depend and rely upon thee for the deliverance of thy word. प्रभु जी, इस वचन को देने के लिए प्रभु जी संपूर्ण रीति से आप ही के ऊपर हम आधारित है। Keep the Zoom system functional till the end of our meeting without any disturbance. प्रभु जी, ये जूम का जो सिस्टम है प्रभु जी अच्छी रीति से अंत कार्य करे, ऐसी दया आपसे चाहते हैं। Put the right words in my mouth by the Holy Spirit. योग्य शब्द प्रभु जी मेरे मुख में आप दे, And also in the brother who is translating us. और उसी प्रकार जो तजुर्बा करने वाले भाई है उनको भी प्रभु आप दे। Thank you for all those who joined us from different parts of the state of Maharashtra. धन्यवाद देते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग भागों से जो प्रियजन ज्वाइन हुए हैं। May this day be a day of divine visitation
in each one of our lives. प्रभु जी आज का दिन ईश्वरी प्रभु जी भेंट हमारी हो, हमारी नम्र प्रार्थना है। In a new way, thou may minister unto us, और नए रूप से प्रभु जी आप हमसे बातें करें, so that we may be effective in our service, in our ministry, in our fellowship with you, in following you and serving you. प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमारे जीवन में काम करें, ताकि प्रभावशाली रीति से प्रभु जी आपकी संगति में और आपकी सेवा में हम बने रहे, हमारी प्रार्थना है। We bring ourselves under the efficacy of your blood, claiming thy cleansing from every defilement caused by word, thought or deed. प्रभु जी हम अपने आप के आपके लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं, ताकि प्रभु जी सारी अशुद्धता प्रभु जी आप दूर करें। In the name of Jesus Christ, the Almighty God and our Savior, we rebuke every power of darkness. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उद्धारकर्ता के नाम में सारी अंधकार की शक्तियों को बांध देते हैं। And ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Brother John Stewart, please increase your voice little. Okay, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए ब्रदर आपका। so I'll come closer. I come closer. Okay, right. The first two passages in the Old Testament, we read about prayer. पहले जो दो शास्त्र भाग हमने पढ़े हैं वो प्रार्थना के लगाव में है। The third passage from John's Gospel, chapter 12, we read about the service. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का जो शास्त्र भाग है वो सेवा के बारे में हम पढ़ते हैं। We are all aware prayer is communion and fellowship with the Lord Jesus Christ. और प्रार्थना वो माध्यम है कि जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति कर सकते हैं। Our ministry depends upon our communion, daily communion and fellowship with the Lord Jesus Christ. हमारी जो सेवा है प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन जो हम संगति करते हैं उसके ऊपर आधारित है। Mighty men of God, whom God has used widely and for a longer period, for many decades, are those who spent in proper fellowship and communion with the Lord in prayer. प्रभु के जन जिनको प्रभु ने बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, उनके सेवा के लगाव में हम यही देखते हैं कि अधिकतर समय वो प्रभु के साथ बिताते थे। We always talk about late brother Bakshi, but he was a man of prayer. और हम हमेशा प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के बारे में हम कहते हैं और हम जानते हैं कि वो प्रार्थना के जन थे। Without prayer, he did not do anything. प्रार्थना के बिना प्रभु के दास कुछ नहीं करते थे। Even in the smallest detail of his personal life, even for a haircut, for a soap, or going to the next street, or any visitation, any small village or a big city, he was governed only by through his prayer. और हर एक कार्य के लिए, चाहे वो साबुन की बात हो, बाल काटने की बात हो या कहीं किसी स्थान में जाने की बात हो, हर बात के लिए प्रार्थना में प्रभु की अगुवाई वो मांगते थे। That's why we have seen the power of God operating through his life. और इसी के कारण प्रभु के सामर्थ को उनके जीवन के द्वारा हमने देखा है। Now coming to this passage, it's a wonderful experience of Manoah we find here. और जिस शास्त्र भाग को हमने पढ़ा है, एक अद्भुत मनोह का ये अनुभव यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Verse 8. 8 वचन। Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, that the man of God which thou didst send come again unto us and teach us what we should do unto the child that shall be born. 8 वचन। तब मनोह ने यहोवा से ये विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। In verse 3 we find the angel of the Lord appeared to the woman and said unto her, Behold,
Now thou art barren and bearest not, for thou shalt conceive and bear a son. तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा. We do not know about the name of the wife of Manoah. मनोआ की जो पत्नी है उसके नाम को तो हम नहीं जानते. Her name is not written here. उसका नाम यहां पर नहीं लिखा है. But Manoah, he belonged to a man of Zorah of the family of the Danites. और हम पढ़ते हैं, मनोआ जो है दानियेलों के कुल का सोरोवासी मनोआ नाम का वो पुरुष था. And when he was away from his wife, the angel of God came and announced about the birth, conception of a son and the birth of a son. और जब वो इस दूत से दूर था, तब इस दूत ने उस स्त्री की भेंट लेकर पुत्र संतान के बारे में उससे बातें की है. Manoah was absent from his wife. At that time, the angel of God came and spoke to Manoah's wife. जो मनोआ है अपने पत्नी से दूर था, तब परमेश्वर के दूत ने मनोआ के पत्नी से आकर भेंट की And announced about the birth of a son. और पुत्र के जन्म के बारे में उसने घोषणा की. The angel said, you should not eat anything of wine or strong drink, neither the son which is born to you, you should not give him any wine or strong drink. और उसने कुछ सूचना दी है. उस चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि अब सावधान रहकर तुम दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए. And also when your son is born, don't allow him to eat anything of wine, don't allow any razor to come upon his head. और तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म से परमेश्वर का नाजिर होगा. And the 7th verse he said, the child shall be a Nazarite unto God from the womb to the day of his death. और वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा. So therefore, when the angel went away after announcing this, Manoah's wife began to tell her husband what had happened. और ये सारी बातें जब मनोआ के पत्नी से दूत ने बताकर चला गया है, मनोआ की पत्नी ने अपने पति से इन सारी बातों को बताया है. Then verse 8 comes. Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God without his son come again unto us. Teach us what we shall do unto the child that shall be born. 8 वचन. तब मनोआ ने यहोवा से ये विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वचन जिसे तूने भेजा था, फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें. It was very mysterious. God immediately answered his prayer. और ये बड़ी रहस्यमय बात है कि तुरंत प्रभु ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया है. God, there was earnestness in his prayer. There is seriousness in his prayer. क्योंकि उसके प्रार्थना में वो गंभीरता थी और बड़े बोझ के साथ उसने की थी. They were very serious, took it very seriously about the birth of the child and to order the child in the ways of God, in the things of God, as God has commanded. और ये बात उसने बड़ी गंभीरता से दी अपने पुत्र के जन्म के बारे में, और वो कैसे परमेश्वर के मार्ग में चले, इस बात को बड़ी गंभीरता से उसने लिया. We find in the book of Judges, children of Israelites again and again doing evil in the sight of the Lord. और हम इस्राएल संतानों के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में बारंबार वो बुराई करते रहते थे. So therefore, God was sending them into captivity, either to Philistines or to Moabites and other nations. और इस कारण परमेश्वर उनको बंधुआई में भेजता था, और इस बंधुआई के लिए फलिश्तियों को या दूसरे मोआबी को प्रभु ने इस्तेमाल किया. See verse 1. पहला वचन, Judges chapter 13 verse 1.
न्याययोग की किताब 13 अध्याय 1 वचन। And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. इसराइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुराई की, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। So therefore, God wanted a deliverer to deliver children of Israel from the Philistines. और इस कारण पलिश्तियों के हाथ से प्रभु चाहता था कि कोई उनको छुड़ाने वाला खड़ा रहे। 40 years they were in, they were in the captivity of Philistines. पलिश्ती लोगों के बंधुआई में 40 वर्ष तक इस्राएल लोग थे। So God wanted a Nazarite. तो प्रभु एक नाजीर को चाहता था। Nazarite means a separated one, wholly devoted, wholly consecrated unto God. नाजीर का मतलब है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित है। We find those details in Numbers chapter 6. और इसके बारे में हम गिनती की किताब और उसके हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं। We are not seeing all the details now, अब इन बातों को विस्तार से तो हम नहीं देखते, but 3 main things. मगर 3 हम देखते हैं प्रमुख बातें हैं। You should not eat anything of that wine. और दाख मधु से वो कुछ न खाए। Then secondly, you should not allow any razor to come upon any part of his body. दूसरी बात है कि उसके सिर पर जो है कोई छुरा ना चले। Then you should not even touch the corpse or a dead body. और जो मृतदेह है उसको वो कभी स्पर्श ना करे, Including his father, mother, brother or sister. और उसमें उसके माता पिता भाई बहन सब लोग उसमें शामिल हैं। Time you should be wholly separated unto God. और संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए पवित्र और अलगाव का वो जीवन बिताए। You find in Numbers chapter 6 first 8 verses, you can read afterwards. और गिनती के किताब उसके 6 अध्याय में हम इस शास्त्र भाग को हम पढ़ सकते हैं। Now Manoah and his wife took this mission as very, very seriously. और इस जिम्मेदारी को मनोआ और उसके पत्नी ने बड़ी गंभीरता से लिया है। That's why second time when Manoah entreated unto the Lord immediately hearkened to his request. और इसलिए दूसरी बार जब मनोआ ने यहोवा से विनती की है, तुरंत मनोआ की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। Brother, is it a small thing to get an angel of God through prayer down to the earth? क्या प्रियो, ये छोटी सी बात है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का दूत इस धरती पर आ जाए? The Lord would have said, already it has been declared unto his wife, you listen to his wife and carry on your responsibility. परमेश्वर ऐसे भी बोल सकता था कि ये जो संदेश है दूत के द्वारा तेरे पत्नी को पहुंचाया है, उसके अनुसार अब तुझे करना है। So whatever your wife says, you follow. और तेरे पत्नी ने जो कुछ तुझे बताया है उसके अनुसार तू कर। No, God also did not say that. नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। God saw the earnest prayer of this man, a simple man called Manoah. और मनोहा की दिल की गहराई की ये जो प्रार्थना है प्रभु ने सुन ली है। And their seriousness about the announcement of the birth of the child who would be a Nazarite unto God and who would be a deliverer of Israel from the hands of the Philistines. और पुत्र के जन्म के बारे में प्रभु ने घोषणा की है जो नाजिर रहेगा और इस्राएल लोगों को वो छुटकारा देगा। I am reminded in Luke chapter 16 one incident. और लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक घटना को मैं स्मरण करता हूं। You know about the rich man and Lazarus who died, went into the presence of the Lord. Lazarus went to the presence of the Lord. This man went into Hades. और हम इस शास्त्र भाग को हम जानते हैं कि इस शास्त्र भाग में एक धनी मनुष्य जो है जो नरक में चला गया है और गरीब लाजार जो है प्रभु की उपस्थिति में वो पहुंचा है। He is in the bosom of the Abraham, the father of faith, and being comforted. और वो
अब्राहम के हम देखते हैं सीने के निकट वो गोद में लाजर था। You know, this man asked Abraham, Father Abraham, send that Lazarus to put a drop of water on my tongue. और हम देखते हैं धनी मनुष्य ने ये विनती की कि लाजार को भेजे ताकि अपनी उंगली का सिरका पानी में भिगोकर मेरी जीभ को वो ठंडा करे। So Abraham also did not consider. तो अब्राहम ने उसके बारे में सोचा नहीं, He said, there is a gulf between us and you. और उसने कहा कि आपके और हमारे बीच में भारी गड़ा है, You cannot come over there. We cannot reach you there. Neither you can reach us. ना तो हम तुम्हारे पास आ सकते ना तुम हमारे पास आ सकते हो। Then the rich man said, उसके बाद इस व्यक्ति ने कहा, send somebody to my 5 brethren who are on the earth, that they may not come to this place where I am being tormented. और उसने कहा कि मेरे 5 भाइयों के पास किसी को तो अब भेजो ताकि जिस स्थान में मैं इस पीड़ा को भुगत रहा हूं उस स्थान में वो न आए। Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. Let them hear them. और अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता है और उनकी वो सुने। Then that man says, no, my brothers won't listen so easily, but he must go from here. Then only my brothers will listen. फिर वो धनी कहता है, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। The thought here is that request was not answered by Abraham, the father of faith. तो यहाँ पर विचार ये है, जो विश्वास का पिता इब्राहिम है उसने इसकी धनी मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुनी। Now, but here God sends the angel to Manoah the second time. मगर जिस शास्त्र भाग को हमने पढ़ा है वहां पर हम देखते हैं दूसरी बार स्वर्गदूत को परमेश्वर ने मनोहा के पास भेजा है। At this time also, Manoah was away when the angel came. और हम देखते हैं जब दूसरी बार दूत आया है तो मनोहा उससे दूर था। But his wife quickly called him to come to her. मगर उसके पुतने ने तुरंत मनोहा को अपने पास बुलाया है। Came to this man. They were thinking it's to be a man, but it's an angel of God. They could not perceive that he was an angel of God. और उनको ये समझ में नहीं आया कि ये परमेश्वर का दूत है, ये कोई मनुष्य है, ऐसा उनको लगा। See the verse in 12, and Manoah said, now let thy words come to pass. How shall we order the child, and how shall we do unto him? और मनोआ ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक को कैसे ढंग से उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोआ से ये कहा। So again the angel of God repeats what he has told to Manoah's wife. और फिर एक बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दूत है जो मनोआ की पत्नी को जिन बातों को बताया था वो दोबारा वो दोहराता है। They offered burnt offerings and meat offerings unto the Lord. और हम देखते हैं कि वो अन्न अर्पण होम अर्पण उन्होंने प्रभु को अर्पण किया है। In that flame, the angel of God ascended into the heavens. और उसकी ज्वाला में हम देखते हैं स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग की ओर चला गया है। Then only they realized it was an angel of God. उसके बाद वो जान गए हैं कि वो परमेश्वर का दूत था। See verse 21, Judges 13:21. न्याय की किताब 13 अध्याय 21 वचन। But the angel of the Lord did no more appear to Manoah and to his wife. Then Manoah knew that he was an angel of the Lord. परंतु यहोवा के दूत ने मनोआ और उसकी पत्नी को फिर दर्शन न दिया। तब मनोआ ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था। Beloved, God answers prayers whenever there is earnestness, there is seriousness, there is faith in our lives. प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है जब बड़ी गंभीरता के साथ बोझ के साथ प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, विश्वास की प्रार्थना। Unexpected things can happen when we really earnestly pray unto the Lord. जब हृदय की गहराई से हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, अनपेक्षित बातें भी
हो सकती है। Angel of God appearing and ordering how a child should be brought up to be a deliverer of Israel from the hands of the Philistines. और स्वर्गदूत इन बातों को बताता है कि कैसा पुत्र वो जन्मेगा और कैसे शत्रु के हाथों से वो उनको छुटकारा देगा। Let us realize our prayer life is very, very weak. आइए इस बात को हम जान ले कि हमारा प्रार्थना का जीवन जो है बहुत ही दुर्बल है। It's very mechanical for self-glory, popularity, or name or fame, whatever we do, but not for the glory of God. No earnestness in prayer, no earnestness in our ministry. और हमारी जो प्रार्थना है एक यांत्रिकी है, स्वार्थी है और नाम और शान कमाने के लिए है। इस बात को हमें जानना है। Many times, of course, we have to use the holidays properly. और कई बार जो छुट्टियां है उसको योग्य रीति से उसको इस्तेमाल करना है। But we go by the calendar. ये छुट्टी है, कुछ एक्टिविटी लगाओ, कुछ प्रेयर मीटिंग लगाओ, कुछ गॉस्पेल मीटिंग लगाओ और कुछ भी लगाओ। और कैलेंडर देखते हैं और छुट्टी के अनुसार हम बोलते हम सुसमाचार की सभा लगाएंगे, विशेष सभा लगाएंगे। We are not concerned whether the Lord really wants it. Are और we for the Lord? Are we really bringing God into our situations, in our operations, and glorifying Him? इस बात को हम नहीं सोचते हैं ये कार्य करने के द्वारा क्या प्रभु की महिमा हम करते हैं, ये विचार हमारे मन में नहीं आता। So, beloved, there should be earnestness to glorify God in everything, whatever do, including our prayer life. प्रियो, हमारी प्रार्थना के जीवन के बारे में, प्रियो, हमारे हृदय में गहरी इच्छा प्रभु को महिमा देने के बारे में होना चाहिए। Through Manoah's prayer, angel of God descended and instructed Manoah and his wife. मनुआ की ऐसी हृदय की गहराई के प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत ने किस प्रकार मनुआ और पत्नी को सूचनाएं दी है। He came down, God sent angel. और परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत को पृथ्वी पर भेजा है। So, secondly, दूसरी बात, we are seeing about the prayer of Samuel, the prophet of God. अब हम देखते हैं कि दूसरा जो शास्त्र भाग है, शमूएल की प्रार्थना को हमने सुना। Through his prayer, the Lord sent rain and thundering upon the earth. और हम देखते हैं कि शमूएल की प्रार्थना को सुनकर मेज गरज गए हैं और मेह भी बरसाया है। Not only Elijah brought rain through his prayer, even Samuel also brought rain. Yes, Buddha. Not only Elijah brought rain through his prayer, Samuel also brought rain. ना केवल एलिया ने अपने प्रार्थना के द्वारा उसने बारिश लाई, मगर हम देखते हैं शमूएल के प्रार्थना के द्वारा भी किस प्रकार बरसात हुई है। Now coming to this chapter, अब इस अध्याय की ओर जब हम आते हैं, Samuel is rebuking Israel for asking for a king in this chapter. इस अध्याय में शमूएल जो है इस्राएल लोगों को वो डांटता है क्योंकि वो राजा को मांगते हैं। So God anointed Saul to be the king of Israel in the 9th chapter. और 9 अध्याय में हम देखते हैं कि शाऊल को राजा करके अभिषेक किया गया है। But yet God was not well pleased with him, with that request. मगर हम देखते हैं कि उनकी विनती के द्वारा प्रभु प्रसन्न नहीं था। In those days, till Saul was anointed to be the king of Israel, God was reigning and ruling in the midst of children of Israelites. और जब शाऊल राज कर रहा था तभी भी हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएल लोगों के बीच में वो था और राज्य करता था। वो खुद राज करता था। खुद राज करता था। Those were the days of theocracy. It is called a theocracy. और यस बेटा, That is called a theocracy. Theocracy. वैसे बोलो theocracy करके। थियोक्रेसी के वो दिन थे। Theocracy means God directly ruling in our lives.
in every क्यों area of our lives. थियोक्रेसी का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य करता था। He was ruling through Moses, through Joshua, and through Judges till the end of the book of Judges. और हम देखते हैं मूसा, योशुआ और न्यायों के द्वारा परमेश्वर राज्य करता था, Till the King Saul was anointed to be the king of Israel. और शाऊल को इस्राएल का राजा होने तक अभिषेक किया, तब तक वो राज्य करता था। But children of Israelites, like other nations, they want to copy other nations and wanted a king over them. और इस्राएल लोगों को दूसरे राष्ट्र के अनुसार अपने ऊपर वो राजा को चाहते थे। See 1 Samuel chapter 8 and verse 20. पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय 20 वचन। That we also may be like the nations, that our king may judge us and go out before us and fight our battles. जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। And see verse 7, 7 वचन, 6 and 7. 6 और 7। But the thing displeased Samuel, and they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर ये न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। And the Lord said unto Samuel, verse 7, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना किया और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। So this request was displeasure to Samuel, not only to Samuel, even for God. और ये जो विनती है इस्राएल लोगों की, वो विनती जो है वो शमूएल को भी वो अच्छी नहीं लगी और प्रभु भी उससे प्रसन्न नहीं था। The Lord said, they are not rejecting thee, but they are rejecting me. और प्रभु उनसे कहता है, वो तेरा इनकार नहीं करते मगर मेरा इनकार कर रहे हो, That I should not reign over them. कि मैं उनके ऊपर राजा न रहूं। Beloved, in our life, the Lord Jesus Christ should reign us in every area of our life. He should be the King and the Lord of our lives. प्रियो, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का राज रहे, वो हमारा प्रभु और राजा रहे। Our boxing is to pray always, we enthrone you as the King of Kings and the Lord of Lords in our hearts, in our homes, and in our midst. In every meeting is to pray like that. और भाई भक्त सिंह इस तरह की प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारे हृदय पर, प्रभु जी तेरा सिंहासन, तेरा राज रहे हमारे वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में। And also take away every eye from man. Take away every eye from man. और प्रभु जी मनुष्य से स्वार्थ को निकाल दे, प्रभु स्वार्थ को निकाल दे। आंख निकाल दो। आंख निकाल दो प्रभु जी। We must only look unto you in every matter. हाँ प्रभु जी, दूसरे किसी भी के ऊपर हमारी आंख न रहे, केवल आप ही के ऊपर हमारी आंख रहे हर बात के लिए। But children of Israelite, they were very, very particular. जिद करते रहा, they wanted a king in their midst. मगर इस्राएल लोग जो है अपने जीवन में वो जिद किए कि उन्हें राजा ही चाहिए। Verse 21 and 22, same chapter. 21 और 22 उसी अध्याय का। And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, hearken unto their voice and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, go, ye every man unto his city. लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाई और यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएल मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। Though a king was given, but yet God's heart was not satisfied, neither Samuel's heart was not satisfied. मांग के अनुसार राजा तो दिया गया, मगर
शमूएल भी इस बात से वो प्रसन्न नहीं था और प्रभु भी इस बात से प्रसन्न नहीं था। It was not the perfect will of God, it was only permissive will of God. और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी, मगर ये परमेश्वर की अनुमति दी हुई इच्छा थी। Thought of a king in the midst of Israel is not emanated from the heart of God, it emanated from the people of Israel, children of Israel. इस्राएल के लिए राजा दे, ये बात जो है परमेश्वर के हृदय से नहीं निकली थी, मगर इस्राएल संतानों के हृदय से ये बात निकली थी। So, beloved, coming back to this passage which we have read, अब प्रियो, जिस शास्त्र भाग को हमने पढ़ा है उसकी ओर फिर हम आते हैं। verse 16. और उसका 16 वचन, Now therefore stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। Is not wheat harvest today? I will call unto the Lord, and he will send thunder and rain, and he may perceive and see that your wickedness is great, you have done in the sight of God in asking you a king. आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही है? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगो कि तुमने राजा मानकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। Why asking God to send rain and thunder? Samuel want to show to them that in asking a king, they did much evil in the sight of the Lord. शमूएल जो है ऐसे मेघ गरजाने की बात या मेह बरसाने की बात क्यों ऐसे वो करना चाहता था? क्योंकि इस्राएल संतान ये जान ले यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बहुत बड़ी बुराई की है। Here in this passage also, immediately the Lord answered the prayer of Samuel, the prophet of God, like he answered the prayer of Manoah. और इस शास्त्र भाग में हम देखते हैं जैसे मनोआ की प्रार्थना को सुना, इस शास्त्र भाग में हम देखते हैं शमूएल की भी प्रार्थना को प्रभु ने तुरंत सुन लिया है। 18th verse. 18 वचन, So Samuel called unto the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। उसी दिन, not later on, उसी दिन he has sent the rain. उसी दिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मेघ गरजाया और मेह भी बरसाया है। And the people said, verse 19, and the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord, thy God, that we die not, for we have added unto all our sins this evil to ask us a king. 19 वचन, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। Now they acknowledge their sin. अब अपने पाप को उन्होंने मान लिया है। Then Samuel gives them a comforting message. उसके बाद एक सांत्वना का संदेश शमूएल उनको देता है। Verse 20. 20 वचन, Samuel said unto the people, fear ye not, ye have done all this wickedness. Ye turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत न मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। Again says verse 21, turn ye not aside, for then should ye go after vain things which cannot profit nor deliver, for they are vain. 21 वचन, और मत न मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तु के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। But the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. यहोवा ने तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। Because you're chosen, he will not forsake you. और उसने तुम्हें चुना, इसलिए वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। And I will continue to pray for you.
और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना लगातार करता रहूंगा। I should sin against the Lord if I do not pray for you. अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ देता हूं तो मैं उसके विरुद्ध में पापी ठहरूंगा। So therefore, beloved, prayer life is very important in our life. तो प्रियो, प्रार्थना का जो जीवन है हमारे जीवन में बहुत ही प्रमुख है। Our public life depends upon our secret life with God in closet. और हमारा जो जाहिर जीवन है वो जीवन जो हमारा गुप्त जीवन है प्रभु के साथ उसके ऊपर आधारित है। Many times we concentrate upon public life, pulpit life. और बहुत से बात जो जाहिर जीवन है या पुलपिट का जो जीवन है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते We हैं। don't pray much, we don't wait upon the Lord, but we want to be seen by all men, appreciated, applauded, honored by all men. और अधिकतर हम प्रार्थना में नहीं समय बिताते हैं, मगर प्रियो सब हमें चाहे, सब हमें सुने, सब हमारी प्रशंसा करे, यही हम चाहते हैं। Udhar bhago, idhar bhago, we want to run helter skelter outside the will of God. और प्रभु के इच्छा के बाहर यहाँ वहाँ हम भागना चाहते हैं। Whether God sends or not, we want to go. और प्रभु की इच्छा नहीं भी हो फिर तो भी हम जाते हैं। सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, प्रभु ने भेजा, प्रभु में मैं गुरु को भेजा, like actually the Lord has not sent us. और वास्तविक रूप से तो प्रभु ने नहीं भेजा रहता है, मगर कहते हैं प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। Very easily we talk. We और very बड़ी- easily take the name of the Lord. Very और- easily we talk about the will of God. और प्रभु की इच्छा के बारे में बड़े आसान से हल्के रूप से हम बोल देते हैं। So beloved, let us be careful. प्रियो, हम इसके बारे में बड़े सावधान रहे। Let us maintain our private, secret life, intimate communion and fellowship with God first before we launch out into our public ministry. प्रियो, हमारा जो प्रभु के साथ जो गुप्त जीवन है प्रभु के साथ अधिक प्रियो हम उसके साथ उसके संगति में समय बिताए। Matthew 6:6. मत्ती 6:6। But when thou prayest, enter into thy closet. When thou hast shut thy door, pray for thy Father which is in secret. Thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, अपने पिता में जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Don't show to people that you are praying. और हम प्रार्थना करते हैं ये लोगों को बताने के लिए ना करें। We must pray that Lord may honor our prayer and anoint us, equip us for himself and for his ministry. प्रार्थना इसलिए करे प्रभु का अभिषेक हमको मिले, प्रभु की ओर से सहायता उसकी सेवा के लिए मिले। Now this Zoom has become a lot of publicity. अब ये जूम माध्यम जो है बड़ा पब्लिसिटी का ये माध्यम हो गया है। Of course, it is essential in these days of pandemic. हाँ, ये जो महामारी के दिन है इसमें बड़ा वो आवश्यक है, इस बात को हम मानते हैं, But it's not forever. मगर ये हमेशा के लिए नहीं है। It is called as shallow worship, shallow ministry, shadow ministry, shadow worship. और ये एक छाव के समान ये सेवा है, छाव के समान ये उपासना है। We must desire. Again, our church building should be open. We must meet as congregations, have fellowship with one another in the name of the Lord. और इसके That's लिए the real हमें fellowship. और हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर एक बार पहले जैसे हम जाहिर रीति से सब प्रभु के घर में हम उपस्थित होकर हम प्रभु के साथ संगति करें। C.S. Spurgeon says about prayer like this. और C.S. स्पर्जन जो है प्रार्थना के लगाव में इस प्रकार वो कहते हैं, We must pray to pray हमें प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना है and continue in prayer और प्रार्थना में बने रहना है that our prayers may continue. ताकि हमारी प्रार्थना निरंतर रहे। I repeat again. फिर एक बार मैं बताता हूं, We must pray to pray हमें प्रार्थना करने के लिए करना है and continue in prayer. और प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रार्थना करना है Our prayers may continue. ताकि हमारी प्रार्थना निरंतर बनी रहे। Secondly, दूसरी बात,
He also said, ऐसे भी उन्होंने कहा, I would teach one man to pray than 10 men to preach. मैं एक मनुष्य को प्रार्थना करना सिखाऊंगा बजे 10 लोगों को वचन की सेवा सिखाने से। I repeat again. फिर एक I बार would मैं कहता हूं, I would teach one man to pray than मैं 10 men to preach. 10 लोगों को वचन की सेवा सिखाने से बजाय मैं एक व्यक्ति को प्रार्थना करना मैं सिखाऊंगा। Oh, beloved, let us be prayers. Let us be prayerful. Let us be devoted and consecrated to God in every area of our life. प्रियो, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रियो हमारा जीवन प्रार्थना का हो। प्रियो, ऐसी प्रभु हमारी सहायता करे। I don't know whether you read one book by Oswald Sanders. It's called Prayer Power Unlimited. I read many years ago. और प्रेयर पावर अनलिमिटेड, ये जो किताब है आपने पढ़ी है क्या? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं कई सालों पहले मैंने पढ़ा है। Prayer Power Unlimited. प्रार्थना का असीम सामर्थ्य। Just as we charge our mobile phones, iPads, and computers through electricity, through prayer, we charge with the power of God in our lives. जैसे हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स हम उनको चार्ज करते हैं, वैसे प्रियो हम हमारे जीवन को प्रार्थना के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। Now, electric cars are coming, automobiles are coming, scooters are coming, cars are coming. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कार्स भी आ रहे हैं, Or buses also in big cities और बड़े बड़े नगरों में बसेस भी आ रहे हैं। to protect from pollution. और जो हम देखते हैं जो पोल्यूशन है उससे बचाने के लिए, So they need to be charged day and night, day and night before the vehicle is taken out to the roads. और वो जो वाहन है रास्ते पे जाने से पहले रात और दिन उसको चार्जिंग करना है। In the same way, we have to charge ourselves. और उसी Prayer प्रकार life. हमें भी चार्ज होने की आवश्यकता है। Now coming to the third section, अब तीसरा जो भाग है उसकी ओर जब हम आते हैं, we're not going to everything in this passage, हम हर एक बात को इस शास्त्र भाग में तो नहीं देख सकते, but one verse I want to concentrate. मगर एक वचन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। Verse 26. 26 वचन, If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. 26 वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। These are the words of the Lord Jesus Christ's disciples as he was announcing about his death, burial, and resurrection. प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बारे में वो अपने चेलों से इन बातों को बता रहे थे। In that context, he's talking about the service unto the Lord. और उस संदर्भ में बताते हुए प्रभु की सेवा के बारे में वो बता रहे हैं। There are 4 parts in this verse. और इस वचन में 4 भागों को हम देखते हैं। If any man serve me. यदि कोई मेरी सेवा करे। Second part. दूसरा भाग, Let him follow me. तो वो मेरे पीछे हो ले। Thirdly, तीसरा, and where I am, there shall also my servant be. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। Fourthly, चौथी बात, if any man serve me, him will my Father honor. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। If any man serve me, beloved, many of us are in God's service as full-timer, half-timer, part-timer, whatever it is. प्रियो, यहाँ पर लिखा है कोई मेरी सेवा करे, चाहे हम संपूर्ण रीते आधा समय या जो भी समय प्रभु की हम सेवा करते हैं। Some are called to be full-timers. और संपूर्ण समय सेवा के लिए बुलाए हैं। I don't know whether you called yourself to be a full-timer or whether God called you to be a full-timer. मैं इस बात को नहीं जानता कि आप अपने आप को संपूर्ण समय सेवा के लिए आप आए हैं या प्रभु ने आपको संपूर्ण समय सेवा के लिए बुलाया है। There is a lot of difference और इसमें बड़ा अंतर है between God calling us and calling ourselves. एक तो परमेश्वर हमको बुलाए या हम अपने स्वयं को बुलाए। Many people choose service when they are not having any
other thing to do. और कई बार ऐसा होता है, लोग सेवा को चुनते हैं जब उनको और कुछ काम नहीं होता है। They are not successful in any field, then they think that is the reason God may be calling me, so I will call for God's service. वो कहते हैं इस काम में मुझे कोई सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह है प्रभु मुझे सेवा के लिए बुला रहा है। So that's how they prepare themselves and come for God's service. और उस प्रकार वो अपने आप को तैयार करके प्रभु की सेवा के लिए आते हैं। It's not an occupation or a profession, beloved. We must be प्रियो called by God specifically in order to serve Him. प्रियो, ये कोई काम या ये व्यवसाय की ये बात नहीं है, मगर व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमें बुलाना चाहिए। Even in secular world, elders and deacons helping brethren also, God must call, God must appoint, God must give the responsibility in the church. Don't grab yourself. और प्रियो, कलीसिया में चाहे वो प्राचीनों की जिम्मेदार भाई की जो सेवा है, प्रियो उसको हम मांग कर हम न ले, प्रभु आपको बुलाए उस काम के लिए। सारे ज्यादा लोग लड़ के रेस्पॉन्सिबिलिटी आने को चाहते हैं, और ज्यादातर लोग हम देखते हैं लड़ के ऐसी जिम्मेदारी पाना चाहते हैं। लड़ के दे वांट टू बिकम टू बी, लड़ के सिस्टर्स मिनिस्ट्री करने को, लड़ के संडे स्कूल बीबीएस लेने को चाहते हैं, और लड़ के संडे स्कूल की सेवा, वचन की सेवा वो पाना चाहते हैं। that's not right in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में ये बात उचित नहीं है। Let us make sure that God has called us, God has appointed us, God has committed this ministry into our hands. आइए इस बात की हम निश्चितता करें, प्रभु हमको बुलाया है, प्रभु ने इस काम को हमको, इस सेवा को हमको सौंपा है। Such people, what they were doing, if any man serve me, और यदि कोई मेरी सेवा करे, let him follow me. वो मेरे पीछे हो ले। That means let them be my disciples. इसका अर्थ यह है वो मेरे चेले बनकर रहे। What is a disciple? चेला कौन है? A disciplined one, और जो अनुशासित है, disciplined by God, और प्रभु के द्वारा अनुशासित, taught by God, और प्रभु के द्वारा सिखाया हुआ, led by God, प्रभु के द्वारा जिसकी अगुवाई होती है, led by the Spirit of God. और प्रभु के आत्मा के द्वारा जिसकी अगुवाई होती है। A disciple will have the tokens of the Lord Jesus Christ, signs of Lord Jesus Christ in his life. और जो चेला है उसके जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के निशान हम देख सकते हैं। He will have the mind of Christ. और उसको प्रभु का मन होगा। In way of humility, we have obedience, we have servitude unto God. हमारे में नम्रता होगी, आज्ञा पालन और सेवा का आत्मा होगा। Thirdly, तीसरी बात, he will be with the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। Where I am, there shall also my servant be. जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 14, 14 अध्याय verse 3. तीसरा वचन। The Lord was telling his disciples, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Not only in his place we are going to be, ना केवल उस स्थान में हम रहने वाले हैं, we are going to be like him. That is our future, ultimate purpose of God in our life. और अंतिम जो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए है, हम उसके समान होंगे। 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन। I'm closing very soon. Be patient. और शीघ्र ही मैं अंत करने वाला हूं, धीरज से बने रहे। Beloved, now are we the sons of God? That not yet appear what we shall be. For we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. We shall be like him, we shall see him as he is. हे प्रियो,
अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। What a wonderful privilege. क्या ही बड़ा हमारे We लिए see सम्मान है। him. हम उसके समान होंगे। In Revelation प्रकाशित वाक्य 3:21, 3:21, 3 अध्याय 21 वचन। to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। It is a reward for the overcomers. और जो जय पाने वाले हैं उनके लिए ये प्रतिफल है। On his throne we are going to sit. We are going to reign with him 1,000 years, an eternal kingdom. और उसके अनंत काल के राज में हम 1000 वर्ष के लिए हम राज करेंगे। And fourthly, God will honor him. That's what the honor. Reigning with him is a big honor. और हम देखते हैं प्रभु उसका आदर करेगा। We will be like him. हम उसके समान होंगे। We will be with him in the हम place उस- where he's going to be. हम उसके संग रहेंगे And we are going to reign with him. और उसके साथ राज भी करेंगे। And God will honor such people. और प्रभु ऐसे लोगों का आदर करेगा। Don't seek the honor of man. और प्रभु मनुष्य का आदर पाने के लिए हम नहीं जिए Don't run and skelter for getting honor for yourself. और अपने आप के लिए आदर पाने के लिए हम ना दौड़े। You serve God faithfully and God will honor you. आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करें और स्वयं प्रभु आपका आदर करेगा। But there are many, according to Paul in Philippians chapter 3, verse 21, और बहुत से verse ऐसे 19, और बहुत से ऐसे हैं कि जैसे पौलुस कहता है फिलिप की पत्री उसका 3 अध्याय और 19 वचन के अनुसार 18 भी पढ़ेंगे, 18. 18 भी हम पढ़ते हैं। For many walk, of whom I've told you often, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। They are, Paul is रो के बोल रहा है. रो रो के पौलुस कहता है They are enemies of the cross of Christ Jesus. और वो मसीह के क्रूस के बैरी है, Because they don't walk in the things of God. क्योंकि प्रभु की बातों में वो नहीं चलते हैं। Verse 19, 19 वचन। there's a severe warning here. और ये गंभीर चेतावनी यहां पर है। End is destruction, उनका अंत विनाश, whose God is their belly, उनका ईश्वर पेट है and whose glory is in their shame, और वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं who mind earthly things. और पृथ्वी वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। My dear servants of God, मेरे प्रिय प्रभु के दासों my dear fellow brothers, और मेरे सहकर्मी भाइयों, whether elders or deacons or ministers of the word of God in any assembly in the state of Maharashtra, और एल्डर्स हो, डीकन्स हो और महाराष्ट्र के अलग अलग भिन्न कलीसिया में जो आप जिम्मेदार भाई हो, what is our motive in service? हमारी सेवा का उद्देश्य क्या है? To follow God, प्रभु के पीछे चलना, to be with God, प्रभु के साथ रहना to be in image, और उसके स्वरूप में हम बदल जाए, to reign with Him, उसके साथ राज्य करें, or serving God for our belly. या पेट के लिए उस प्रभु की हम सेवा करते हैं। Recently, one man of God, one servant of God told me, I don't want to tell the place. और वर्तमान दिनों में एक प्रभु के दास ने ये बातें मुझसे कही, उनका Now, नाम नहीं बताना चाहते, It's widely being used. और बड़ी मात्रा में उनको इस्तेमाल किया जाता है। I asked him, मैंने why उनसे are you joined this group? मैंने पूछा ऐसे झुंड में आप क्यों शामिल हुए? You know what to do? Belly के लिए. और उसने कहा क्या करे? पेट के लिए। पेट के लिए? Answer, I got that answer.
और ये उत्तर मुझे, I'm telling you honestly. और मैं ये खराई से इस बात को आपको बता रहा हूं, इस प्रकार जवाब दिया, पेट के लिए मैं कर रहा हूं, पीने के लिए, खाना के लिए, जीने के लिए. खाने के लिए, पीने के लिए ये सेवा मैं कर रहा हूं। Oh, God forbid, brothers and sisters. You ओ serve प्रियो, God for belly से, खाने के लिए. ओ प्रियो, ऐसे धोखे से प्रभु हमको बचाए। Let our wives also listen to this message. Make them to और listen. हमारी जो पत्नियां है वो भी इस संदेश को सुने, Let our children also listen to this message. हमारे बच्चे भी इस संदेश को सुने। We are serving God to be His followers. हम प्रभु की सेवा उसके पीछे चलने के लिए हम करते हैं, To be in His place, to be like Him, to reign with Him, and to receive honor from Him. उसके साथ रहे, उसके समान हो और उसके संग राज करे, इसलिए हम सेवा करते हैं। For service of God, don't expect any reward from man. और प्रभु की सेवा करते हुए मनुष्य से कोई हमको इनाम मिलेगा ऐसी अपेक्षा हम न रखें। Let us look for the reward from God's hands. और- Always God to God hands, beloved, for reward, not to man's hands. आइए प्रभु के हाथों को इनाम पाने के लिए हम देखें, मनुष्य के हाथों से इनाम पाने के लिए हमारी दृष्टि मनुष्य के हाथ पर ना रहे। When you look at the man's hands, then you will be disappointed. मनुष्य के हाथ की ओर दृष्टि लगाओगे, आप निराश हो जाओगे, You will not get what you want. आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। Look to God's hands, He will give you everything. और प्रभु के हाथों की ओर आपकी दृष्टि है तो Finally, I निश्चित close आपको with प्रतिफल देगा। these two verses. यस ब्रदर, Finally, I close with these two verses. इन दो वचनों के साथ मैं अंत करता हूं। Colossians कोलोसे की पत्री 3:23 and 24. 3 अध्याय 23 और 24। And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अभी के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं। प्रभु के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं। रिवॉर्ड कौन देगा? प्रतिफल कौन देगा? प्रभु देगा। प्रभु देगा। So beloved, let us be such servants. तो आइए प्रियो, हम ऐसे सेवक हो जाएं। Whichever capacity we are serving the Lord, let us be such servants. प्रियो, जो कोई क्षमता में हम काम कर रहे, इस प्रकार के हम प्रभु के दास रहे। Let us remember Manoah's prayer. हम मनोआ की प्रार्थना को स्मरण रखें। Let us remember Samuel's prayer. शमूएल की प्रार्थना को हम याद रखें। Let us remember the words of Jesus Christ, respect of our service. और हमारी सेवा के लगाव में प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं वो भी हम स्मरण में रखें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं।